وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گھپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چھیڑا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، روم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھیں۔ وہ چنکارتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پر خاموش ہوا تھا۔ وہ مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھیا گئیں۔ اس نے پلکیں سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ طیب فرقان موبائل، 7 بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، یہاں 1 بج رہا تھا۔ پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس پر برچی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہوتا ہے۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے، اماں، ابا، راحیل سب ٹھیک تو تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی، پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی کے آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک پہ چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بمشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھے جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل چھٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بینک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے جلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اسے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پر فون پھر سے بجا۔ طیب فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ طیب فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پر بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبائل لنک کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا ابا، اب بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے، اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پر آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ تو ارم فرقان اصغر، پکڑی گئی تم؟ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متعصب بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا تھا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا
اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تھا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اب اس نے کیچر میں باندھ دیے تھے اور اپنے گلابی کینچی چپل پہن لی تھی۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی بھائی کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پر گون میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سے مارچی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی۔ ہماری پاکستانی اسپین اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ بیل دیتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ علی صبح خود فون کریں تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں، غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی۔ ہاں، یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سی رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دونوں دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈیجی اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں۔ صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ طیب فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات کو تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت دیجیے گا۔ لو، میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کو استعمال کر لیتی ہیں، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے گوشت گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے۔ تو ساری بات دہرا دی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر دی۔ اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پہ تبصرہ کرتی رہیں، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں زاد سے طے تھی۔ اچھا کب؟ اسے کچھ گوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا، ہفتہ ہو گیا رکھے ہوئے۔ جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل ان کے اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈیجے اور عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جیہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ ہے، ابھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی ہیں، وہ انتہائی غیر رومانٹک سا ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹوں اور رنگ برنگے دانوں سے سجے دو ڈونٹس ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔ بے وقتا، پھر بے وقتا۔ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھولی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بات کرتی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی۔
डी जे ने आलू मटर बनाया था जो सालन कम और कोई गदला पानी ज़्यादा लग रहा था जिसमें मटर आलू और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए इसमें मगलूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल ही रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि इसने हाले और अंजुम बाजी के साथ बेवकदर जाने का प्रोग्राम बना लिया है और कल 6 बजे की घोड़सल शटल पकड़ेगी। बेवकदा फिर बेवकदा, वो ओवन का दरवाज़ा बंद करती चौंक कर पलटी। पल भर में इसकी आंखों में नागवारी सिमट आई थी। हाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजे ने शाने उचकाए और यकीनन मेरी तरफ से भी हामी भर ली होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही बेवकता, मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलट कर चीजें उठाती पटक करने लगी। अंदाज में वाज़ेह झंझलाहट थी। क्यों? इतना खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना इधर, बस कह देना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपरी फ्रीजर खोले पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला जोड़ा इसकी गर्दन की पुष्ट पर झूल रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुर्रहमान पाशा का जजीरा है और मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसने रोटियों का पैकेट निकाल कर फ्रीजर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। पैकेट मेज़ पे रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इन मैदे की बनी तुर्क रोटियों का नाम इन्हें मालूम नहीं था, बस दिया स्टोर पे वो फ्रीजर्स में नज़र आती थी और इतनी समझ तो इन्हें थी कि इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब से वो यही रोटियां खा रही थी। डीजे इसकी वैरायटी ओवन में रखने तक सकते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था, हाँ वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर उसका क्या जिक्र? हाले ने कहा था कि हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले कैचअप लाओ, फिर अंजुम बाजी को कॉल करके कल का प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आईं। रात गहरी हो चुकी थी। वो दोनों ने ऊनी स्वेटर पहन रखे थे। वो ड्रोम ब्लॉक से निकलकर बातें करते सब्ज़ाजार पर चली गईं। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फ़ोन करके माजरत की और जब उससे लगा कि वो ज़रा इनकार नाराज़ हो गई हैं क्योंकि इन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता है, ऐसे इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन ले लिया और इन्हें बताया कि इसके पप्पू ने कल उसे और इसके फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजुम बाजी इसकी दावत कबूल करके अब के साथ नहीं चलेंगी, ब्योकत अब फिर किसी रोज़ चलेंगे। यूं अंजुम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फव्वारे की मंडेर पर आ बैठी थी। फव्वारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिरा था और उस पानी में बनते फुटते बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ्ता ये इसको सुना दी। डीजे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ते आहिस्ते सोचकर कहने लगी, तो वो पंखी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था, बिल्कुल। और डोली असली ख्वाजा सरा था, शायद वो इनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर इसके घर चली गई। मुंह उठाकर क्या? मेरा पासपोर्ट था इस पर्स में। और अच्छा हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती, ये नामुमकिन था। मगर तुमने उसे फ़ोन करके बहुत गलती की, तो भुगत रही हूँ ना वो गलती। इस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जिहान के पास इस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और उसने इसी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो इसकी लैंड लेडी को शह देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इसी बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अभी अब मामला ख़त्म हो चुका है, वो अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिला कर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी, अब उनको वापस जाना था। सब्ज़ाज़ार पे चलते डोम ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच ही रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरे के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियाँ बताने से कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं, जैसे इसकी परेशानी अभी तक इसके साथ थी। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकरा कर वापस पलट जाती। जियो इन्फॉर्मेशन के सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे।
اس کے ساتھ بیٹھی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ وہ ہر چند لفظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی، ذرا غور سے ان کے اگلے الفاظ سنتی اور پھر سمجھ کر سر ہلاتی دوبارہ لکھنے لگ جاتی۔ یعنی ایک نگاہ اس کے رجسٹر پر ڈالی، وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا: تم لوگوں کا اسپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے؟ کدھر جاؤ گے اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے جس سے دائیں جانب بیٹھے معتصم کو پاس کر دیا۔ یہ ان کی اور فلسطینیوں کے باہر مشترکہ کلاس تھی۔ معتصم نے ایک نگاہ کھلے رجسٹر پہ ڈالی اور پھر سے جھکا کر کچھ لکھنے لگا۔ جب رجسٹر واپس ملا تو اس پہ انگریزی میں لکھا تھا: ہم ٹرکی کے ٹور پہ جا رہے ہیں، 7 دن میں 7 شہر، ہم پانچوں اور ٹالی، اور تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اف، پھر یہ ٹالی۔ ڈی جے خوف سے جواب لکھنے لگی: ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا اور پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ معتصم صفحے پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا: تو ہمارے ساتھ چلو نا، تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن، ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے، تو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا، چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے۔ نو پرابلم۔ معتصم نے ساتھ ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا۔ حیا دانت پہ دانت جمائے بمشکل جمائیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس کلاس سے زیادہ بورنگ کلاس کوئی نہیں لگتی تھی۔ دفعتاً معتصم نے رجسٹر ڈی جے کی طرف بڑھایا تو اس پر لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کے سامنے رکھ دیا۔ حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھی، اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا: ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز۔ اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی: کیف حالک؟ حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو ہجوں میں لکھا: آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ معتصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے صفحہ پھر حیا کے سامنے کیا، اب کہ اس پہ لکھا تھا: حالی بخیر۔ حیا نے چڑھ کر نیچے لکھا: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا؟ ڈی جے نے حیرت سے سرگوشی کی۔ اگر چھوٹا لکھتی تو فوراً ہی اسے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں پوری فیروز الغات لکھواتا۔ اب بچہ ہے نا، پورا دن ٹھیک پڑھنے میں گزار دے گا۔ اور معتصم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک ہے ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس ڈرام میں آئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ اس نے ایک مور پنکھ کے سبز رنگ کا پاؤں کا چھوتا فراک پہنا۔ فراک کی آستین تنگ چوڑی دار تھی اور نیچے پاجامہ تھا۔ پورا لباس بالکل سادہ تھا۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل اور نیچرل پنک لپ اسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا، دفعہ ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں ہالے اور انجم باجی کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ پھپھو کو بتا تو دیا تھا نا؟ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں اس میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا، ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں، بتا دیا تھا۔ اسی سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت اتفاق سے ملی۔ لانگ روم میں بیٹھنے تک کی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا۔ حیا، آج تم نے گھر میں رونق کر دی۔ وہ وقتاً بہت خوش تھی۔ حیا ان کے گھر اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی ہے۔ یہ خیال ہی ان کو مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پھپھو کے گھر آئی تھی اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ستائش انداز میں کہا تھا، اور یہ رقص تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پر بچھے رقص کی جانب اشارہ کیا۔ اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو حمائل کرے
मज़े से बोली तो फूफो हंस दी। डीजे ने आयत से सरगोशी की। और फूफो का बेटा भी बहुत प्यारा है। हना जोर से उसका पाँव दबाया। वो बस सी करके रह गई। चलो तुम लोग इधर बैठो, मैं अभी आती हूँ। अच्छे मेज़बानों की तरह फूफो मुस्कुरा कर कहते हुए राहदारी की तरफ मुड़ गए, जिसके दूसरे सिरे पे किचन था। किचन का दरवाज़ा खुला था और सोफों पे बैठे हुए इन्हें किचन का आधा हिस्सा नजर आ रहा था। पप्पू वो इनके पीछे ही चली आई। अरे तुम क्यों आ गए? इनको कंपनी दो ना। वो फ्रीजर से कुछ जमे हुए पैकेट निकाल रही थी। वो एक दूसरे को काफ़ी हैं। आप सुनाए, अंकल ऊपर हैं? मैंने सोचा इनसे मिल लूँ। जब भी आती हूँ अमूमन इनके सोने का वक्त होता है, मुलाकात ही नहीं हो पाती। वो ये तो नहीं कह पाई कि जब भी वो आती है पप्पू इनको दवा देकर सुला देती थी ताकि कोई बदमज़गी ना हो। हाँ शायद जागे हुए हो, तुम ऊपर देख लो। अच्छा, और जिहान का रेस्टोरेंट का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया था शायद। ज़रा सिरसिरी अंदाज में पूछा। हाँ, अच्छा खासा नुकसान हो गया है उसका। काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा है इस दिन से। बस दुआ करना, वो पुरमलाल लहजे में कहते हुए कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी। वो वापस आई तो डीजे और हाले पुप्पू के घर की आरइश पे तबसरा कर रही थी, जबकि अंजुम माजी बहुत गौर से टीवी पे कार्टून नेटवर्क देख रही थी, जिसके कार्टून तुर्क में डब किए गए थे। सबाची में जो वाहिद शायद देखने का मौका नहीं मिलता था वो टीवी था। इनको मसरूफ़ पाकर वो जीना चढ़ने लगी। कंधे से लटकते शगुन के सब्ज दुपट्टे का किनारा जीनों पे फिसलता इसके पीछे ऊपर आ रहा था। सिकंदर अंकल के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने होले से उंगली की पूंछ से दस्तक दी, फिर डोर नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। कमरे में नीम तारीकी सी छाई हुई थी। बाहर धूप थी मगर भारी पर्दों ने इसका रास्ता रोक रखा था। सिकंदर अंकल बिस्तर पर लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाला था और आंखें बंद थी। अंकल, इसने हौले से पुकारा। वो हवस बेहिस तो हरकत पड़े थे। वो चंद लम्हे तासुर से उनका पसमर्दा बीमार चेहरा देखती रही, फिर हौले से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों के वसत में थी जब बैरूनी दरवाज़े खुलने की आवाज़ आई। वहीं रेलिंग पे हाथ रख के रुक कर देखने लगी। सोफे पर आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थी। दरवाज़ा खोलकर जिहान अंदर दाखिल हो रहा था, एक हाथ में ब्रीफ केस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नॉट ढीली किए, हल्की ग्रे शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े। वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमज़ोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठिठक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के वसत में खड़ी थी सलाम करके जीने उतरने लगी। जिहान ने चौंक कर सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। पुप्पू से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के इसने खड़े खड़े मुरवतन कहा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर इन्हीं संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजुम बाजी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। पप्पू का बेटा जिहान। वो कदरी खफ़त से तारुफ करवाते हुए आखिरी जीना उतर कर सोफे पर आ बैठी। वहाँ से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जिहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पे लटका था और ब्रीफकेस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल मुंह से लगाए घूंट भर रहा था। साथ ही पुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालते दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, तो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाज़ें साफ सुनाई देती थी। न ज़मान जल्दी। वो बोतल रख कर इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हम समझे। जवाबन वो ज़रा खड़े अंदाज में दृष्टि से तुर्क में कुछ बोला तो दीजिए से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जिहान। पुप्पो ने तंबी निगाहों से उसे घूरा। इसने जवाब में खासी तल्खी से कुछ कहते हुए बोतल मेज़ पे रखी। हाले ने कदरी बेचैनी से पहलू बदला। हया इसके चेहरे के उलझे तासुरात बगौर देख रही थी। वो कुछ देर बाद ज़रा सोच कर बोली, हया, इससे क्लास रीड में आज लेविस पे सेल लगी है, वो चेक न कर लें। उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजी और अंजुम बाजू भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो मैं ज़रा पप्पू को बता दूँ। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफे से अपने अपने बैग उठाने लगी।
अच्छा पप्पू हम चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर उसने जिहान से कंधे को कतन से नजरअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाजा खोले कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो? पप्पू एक मलामत ज़दा निगाह जिहान पे डालकर तेजी से इसकी तरफ आई। फिर वो इसरार करती रही मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बहुत खुश दिली से इनका खुदा हाफिज करके बाहर निकली। डोर मैट पे रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और इसकी जगह सपाट सी सख्ती ने ले ली थी। वो इन चारों के आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मुड़ गई तो दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेजी से हाले की जानब घूमी। हाले, जहां ने पप्पू से क्या कहा? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा इसका चेहरा कदरे फीका सा था। हाले मुझे बताओ इसने क्या कहा? हया, वो किसी और बात पे अपसेट होगा। तुम छोड़ो इस किस्से को। हाले नूर, चिल्लाख लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इसने कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए इसका पूरा नाम लिया। चोलो यानी कि इस गांव की हाले नूर। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। इससे पहले पूछा कि ये कब आए हैं, फिर कहा कि इनके लिए इतना फैलाव करने की क्या ज़रूरत है, और इसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूं ज़ाया कर दें। उसके कंधों पे रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ते से वो पलट गई। हया छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपा कर उसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी पप्पू के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूँ कि मेरे मकरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। वो कोट की जेबों पे हाथ डाले सीध में देखते हुए इनके आगे चलती जा रही थी। आज इसका दिल बहुत बुरी तरह दुखता था। रात सबाची के गर्दनवा पे अपने पर फैलाए हुए थी। सब्ज़ारों पर जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सुबह फूल खिला रही थी। ड्रॉम ब्लॉक्स की चौकोर घड़ियां बाहर से रोशन दिखाई देती थी। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद ही दिन थे और छुट्टियों से पहले ही इनकी ड्रोम में आखिरी रातें थी। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पर निकल जाना था। खतीजा, हया, टाली और चारी के ड्रोम में रौनक अपने अरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्जरलैंड की सारा एग्जिशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पर सुनहरी बालों की लट लपेटते हुए वो कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है और तुम्हारा भी यही है मोमिन। वो कहने के साथ मुश्किल हंसी रोके हुए थी। मोमिन काफ़ी दिनों से इसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो इसको दिखाने के लिए हॉलैंड के लतीफ़ के साथ नज़र आती थी। लतीफ़ ख़ास डच और कैथोलिक था मगर अफ़गानिस्तान में पैदा होने के सबब इसके माँ बाप ने इसका नाम अपने किसी अफ़गान दोस्त लतीफ़ के नाम पे रखा था। यूं वो तमाम फ़लस्तीनियों को बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सिवाय मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और इसके बिल्कुल मुकाबिल काउच पे स्पेन की सेंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगजीन खोले तबसरा कर रही थी। इस थीम के साथ ये कंट्रास्ट कुछ ओवर लगेगा नहीं? हाले मुझसे ज़बरदस्ती सेंड्रा से पूछ रही थी। चेरी अपने बैंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपनी किपोआ ऑयल की आधी शीशी इनको दिखाते हुए बार बार नफ़े में से नहलाते हुए आई डोंट आई डोंट ब्लू दस कहे जा रही थी। किसी लड़की ने बाथरूम में रखा इसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर ट्रिक लगाकर माजरत कर ली थी कि चूंकि मैं जल्दी में हूँ तो पूछ नहीं सकी। और चेरी को जब से इन चंद बूंदों का गम खाए जा रहा था। इन चींटियों के दिल भी अपने कद की तरह होते हैं, छोटे और पस्त। टाली जो ऊपर अपने बैंक पे बैठी है आपको इसराइली नामा सुना रही थी। लम्हे भर को बात रोककर चेरी को देखते हुए बोली, फिर से झटक कर बात का वहीं से आगाज किया जहाँ छोड़ी थी। यू नो इन इसराइल वी हैव सच सिट्रस दैट
टाली के नज़दीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था, सबसे मीठा पानी, सबसे खालिस शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी इसराइल जन्नत है, मुकद्दस और बबरकत सरजमीन। और इसके जाते हया और डीजे इसके फिक्रे में यूं तरमीम कर लेती कि फ़लस्तीन जन्नत है, मुकद्दस और बबरकत ज़मीन है। अब भी है, अब बहुत इनमाक से दोनों हथेलियों पर चेहरा गिराए इसकी बातें सुन रही थी। जो भी था, इसराइल नामा सुनने में मज़ा बहुत आता था। धीमी आवाज़ में बात करने के बावजूद इन सब की आवाज़ों ने मिलकर शोर कर रखा था, और इस सारे शोर में डीजे अपने बैंक के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिया मुंह पर रखे हुए थी। इनकी आवाज़ बुलंद होती गई तो इसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से इनको मुखातिब किया, प्लीज़ शोर मत करो, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोने दो। ओके ओके, हाले ने फौरन इस बात में हिलाया। सबने शिश करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बड़बड़ाहटों में बोलने लगी। डीजे वापस लेट गई और तकिया मुंह पे रख लिया। हाँ चांद, मैं चांद को ही कह रही थी। सारा जो अपनी लिट को उंगली पर मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी, दूसरी तरफ कुछ सुनकर जरा गड़बड़ाई। अच्छा, आज चांद नहीं निकला? ओ, मैंने शायद फिर अपने अपने तस्वुर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए, और अगर इसके साथ हम ये भूल कर लें तो मैच कर जाएंगे। फिर ये रंग। सैंड्रा मैगजीन के सफ़े को पलटकर पीछे से कोई दूसरा सफ़ा निकालकर आने को दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज़ें फिर से बुलंद होने लगी। चंद सानिया बाद रोम में फिर से शोर मचा था। कैन समवन प्लीज शट अप। डीजे जब्त खोकर उठी और जोर से चिल्लाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफ़ा इनको खामोश होने को कह गई थी, मगर बार बार लड़कियों की आवाज़ें बुलंद हो जाती, लेकिन इसके यूं चिल्लाने पर एकदम से ड्रोम में आवाज़ें फ़ौरन बंद हो गई। बस तुम आराम करो, हम चुप हैं, अब सब आहिस्ता बोलो। अच्छा, हैरा जल्दी से मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस लेट गई और कमरे में सब मध्यम सरगोशे में बातें करने लगे। चंद पल मजीद सिरके, फिर इस टाइम में हमारा मुकद्दस तरक। सबसे पहले टाली की आवाज़ बुलंद हुई थी, फिर सारा, फिर हाले और फिर चैरी, जो अभी तक सबको मुतवज्जो करने की सही करते हुए इन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहाँ की अखलाकियात है कि किसी का तेली से पूछे बगैर इस्तेमाल कर लिया जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजे एकदम उठी, कंबल उतार कर फेंका, बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरी, अपनी मेज पर रखा स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तय कर वो ऐनक खोल कर आंखों पर लगाई और खामोशी से किसी की तरफ पीते के बगैर बाहर निकल गई। इसने अपने पीछे धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया था। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे को देखा था। सारा ने बिना कुछ कहे रिसीवर क्रैडल पे रख दिया। चैरी ने खफत से अपनी बोतल वापस बैग में रखी। हाले और सेंड्रा ने मैगजीन बंद कर दिया। बहुत सी नादिम निगाहों के तबादले हुए। वो नाराज़ हो गई है, अब क्या करें? हाले बहुत आहिस्ते से बोली, ठहरो, मैं उसे मनाती हूँ। हैना कंबल परे हटाया और बैंक की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। मेज़ पर रखा अपना दुपट्टा उठाया और चप्पल पहनते हुए बाहर निकल गई। पीछे कमरे में अभी तक सन्नाटा छाया था। स्टडी साथ ही थी, उसे पता था डीजे वहीं होगी। इसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो सामने राइटिंग टेबल पर किताबें फैलाए बैठी थी। चौखट से इसका नीम रुखी नजर आता था, फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही है। इसका दिल एकदम बहुत ज़्यादा दुखा। वो दबे कदमों चलते हुए इसके करीब आई। डीजे खतीजा बाई कनपट्टी को उंगली से मसलते चेहरा किताब पर झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। डीजे, वी आर रियली सॉरी। वो कुर्सी खींचकर इसके साथ बैठी और इसका हाथ थामना चाहा। डीजे ने सख्ती से हाथ छुड़ा लिया। उसे बेहद मलाल हुआ। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो जवाब दिए बिना यूं ही कनपट्टी को उंगली से मसलती किताब पे सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? इसने होले से पूछा। डीजे ने इस बात में सिर हिलाया। टैबलेट ली है कोई? हाँ। वो हथेली की पुश्त से गीले रुखसार रगड़ते हुए बोली तो आवाज़ भारी थी। सिर्फ यही बात है? इसने गौर से इसका चेहरा देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, हमने घर ही तो चले जाना है। सेमेस्टर ख़त्म होने में बहुत देर है। इससे चेहरा उठाकर बेचारी से उसे देखते हुए कहा। ऐनक के पीछे इसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। देर कहाँ, फरवरी में हम
इधर आए थे, मार्च गुज़र गया, अप्रैल गुज़र गया, मई आने वाला है, जून में एग्ज़ाम्स होंगे और जुलाई में हम पाकिस्तान होंगे। 5 माह तो ख़त्म भी हो गए। डीजे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड, खलास। इसने हाथ झाड़ कर जैसे बात ख़त्म की। डीजे ने चंदा में डिपडिपाती आंखों से उसे देखता। हाँ, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल दूर डर गया। पता नहीं घर में सब ठीक भी है या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल इनके लिए दुखता है। मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाएं, तुम जानती हो या नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हम 5 माह ख़त्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं करी, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम पाक इस्लामाबाद चले जाएं। हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कज़न की शादी है, मगर मैं उसे कुर्बान कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हमारा दिल बहुत ख़राब होगा और फिर यूं तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। अकेले, डीजल सजाया सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक़ था। ऐसी आज़ादी जिसमें अब्बू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तभी होता है जब वो तन्हा होता है, और यही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है। जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं और मुझे लगता है हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। हया ने जैसे तासुर से नफ़े में गर्दन हिलाई, फिर निगाह मेज़ पर रखी डीजे की मोटी सी फ़लसफ़े की किताब पे पड़ी, जिसके सिर पे सकरात की तस्वीर बनी थी। इसकी पेशानी पे बल पड़े। परे हटाओ इस बूढ़े अंकल को, इसको पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। सिकरात को कुछ मत कहो, डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सिकरात ने किसी अज़्मतो बहादुर से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तंग कर कहते हुए खड़ी हो गई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे, 7 दिन और तुर्की के 7 शहर। ये प्रोग्राम है हमारा। डन डन, डीजे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टाली का इस्राइल नामा सुनने वापस चली गई। ओह नहीं, यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम, पुराना टाइम। डीजे ने झुंझलाते हुए किताब खोल ली। उसे नए टाइम पर पुराने टाइम से ज़्यादा खौफ किसी शय से नहीं होती थी। टास्किन स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी बहार के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। सुबह का वक्त था और मुजस्मे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सुर्ख ट्यूलिप्स खुले खिले थे। फिजा में ताज़ा पके फूलों की रसीली महक थी। वो दोनों इस ठंडी मीठी हवा में साथ चलती इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने सियाह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डाल रखा था। वो इतनी दफ़ा इस्तकलाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो इन्हें हिफ्ज हो चुकी थी। इसके बावजूद वो आज तक इस तवील तरीन गली के इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकी थी। इनके तमाम दोस्त और ड्रोम फेलोज कल ही अपने टूर्स पे निकल चुके थे। इन्होंने आज सारा दिन इस्तकलाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह की बस से कप्पादोकिया जाना था। आज वो खूब भाव ताव करके शॉपिंग करके प्रोग्राम बनाकर आई थी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सियाहों के लिए तुर्क फ़ौरन न कम कर लेते हैं। 7 दिन 7 शहर, कितना मज़ा आएगा ना। डीजे ने चशम तसव्वुर से खूबसूरती तुर्की को देखते हुए आंखें बंद करके खोली। मज़ा तो छोटा लफ्ज़ है डीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है। क्या ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है? वो दोनों इस्तकलाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी। वहाँ हमेशा की तरह रश था। दोनों इतराफ में बड़े रेस्टोरेंट्स और दुकानों की रौनक अरूज पे थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है। हम रोज़ एक शहर जाएंगे, एक रात इधर क़याम करेंगे और फिर वहाँ से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। यूँ 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे और कप्पादोकिया में हॉट एयर बलून की फ़्लाइट भी लेंगे। कितना मज़ा आएगा हया, जब हम बलून की टोकरी में बैठे ऊपर फ़िज़ा में तैर रहे होंगे और ऊपर तुर्की हमारे कदमों तले होगा। वो दोनों बहुत
जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड न जगमगा रहा था। डीजे ने गर्दन मोड़ कर उसे कहा, सुना है आप, जेहान को भी साथ चलने को कहें, इसका तो नाम मत लो। वो सामने देखते हुए आगे चलती गई। अब भी वह इसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार माफ कर दो ना, वो किसी और बात पे अपसेट होगा, मगर मैं इसी बात पे अपसेट हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इससे मिलने की। वो इसे बाजू से खींच कर आगे गई। मेरा माइग्रेन ज़रा ट्रिप खराब करेगा, टैबलेट ली थी मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर्ड फ़ोन खराब करेगा। इसने कोट की जेब से हाले का भद्दा फ़ोन निकालकर मायूसी से उसे देखा। इसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती थी। वहाँ दूसरे शहर में पता नहीं क्या हालात हो। मैं अपने पाकिस्तानी फ़ोन का रजिस्टर करवा लेती हूँ, ठीक है, मगर पहले जूते देख लें। वो दोनों शू स्टोर का दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। दरवाज़ा ज़रा भारी था, मुश्किल से खुला। हया छंबे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। अजीब बात थी कि जिस अगली दुकान पे वो गई, इसका दरवाज़ा भी ज़ोर लगाकर धकेलने पे पीछे हुआ। आज इस्तक़लाल जदीसी के दरवाजे को क्या हुआ है? टीजे भी महज़ूज़ होकर हैरत से बोली, एवा एवा की दुकान इस्तक़लाल स्ट्रीट में ज़रा आगे जाकर मिली। वो दोनों इकट्ठी चौखट तक आईं और लाशऊरी तौर पर एकदम बहुत ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का था। वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुख्तलिफ सिम्त में खड़े स्टैंड से टकराया और जोरदार छना की आवाज़ आई। लोहे की स्टैंड की कोई हुक निकल गई थी। इसकी ज़रब ज़ोर से लगी और दरवाजे के ऊपर हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पर आ गिरे। वो दोनों एकदम साकित सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थी। काउंटर के निचले दराज से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर ऊंचा किया। टूटे दरवाजे को देखकर इसका मुंह पूरा खुल गया। वो हक्का बक्का सा खड़ा हुआ। काय पे करती, इसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सख्ता पहले टूटा। वो हया के करीब खिसकी और खोरे से सरगोशी की। हया, इसने हमें दरवाजा तोड़ते नहीं देखा, बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खंगारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन रजिस्टर करवाना है। काय पे करती मैडम? वो फ़ोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। मुझे फ़ोन रजिस्टर करवाना है। काय पे करती? डीजे ये क्या बक रहा है? वो कोफ से डीजे की तरफ पलटी। उसे गालिबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे का पूछ रहा है। देखो भाई, वो आगे आई और काउंटर पर कहती कह कौनी रखी है, बड़े एतमाद से बोली, हमने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाज़ा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने कभी ज़िंदगी में दरवाजे नहीं देखे, हमारे घर में दरवाजे होते ही नहीं हैं। लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं। मगर इनकी कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो अब सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही कहते थे। अच्छा, मेरा फ़ोन तो रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीनों कीना पर वह निगाहों से उन्हें देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट? इन दोनों ने एक दूसरे को ज़रा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फ़ोन के लिए मांग रहा है? नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजे से पासपोर्ट नहीं देना, वरना इसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, डीजे ने ज़ोर से हाथ हिलाकर कहा। वो ख्याल से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट? इसने बाजू फैलाए, फिर से पासपोर्ट मांगा। कहा ना नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। है झुंझलाए हुए अंदाज में कह रही थी, पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कहे जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला था। इसने ना समझी से देखा, फिर इसकी निगाहों के ताकों में गर्दन मोड़ी। हया हया, पीछे खड़ी डीजे दोनों हाथों में सर थामे ऊंधी गिरती जा रही थी। इसकी आंखें बंद हो रही थीं और वह तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे डीजे, वह ज़ियानी अंदाज में चीखते हुए इसकी तरफ लपकी। इसकी ऐनक फिसक कर फर्श पर जा गिरी। तेजी से इसकी तरफ बढ़ते लड़के का जोगर इस पे आया। क्रिच की आवाज आई और एक शीशा दो हिस्सों में बट गया। डीजे डीजे, वो इस पे झुकी दीवाना वार उसे पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थी। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी।
अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह सफेद था, सफेद बेजान ठंडा। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, साकित जामिद, सीध में किसी गैर मरे नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए। इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी, वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था कि खदीजे के ब्रेन में बैरी एनोरिज्म थी, एक फूली हुई एनोरिज्म जो फट गई थी, सब ऑर्गेनाइड हैमरेज। डॉक्टर ने कहा था कि बैरी एनोरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90% की मौत वाकई हो जाती है। कम से कम 10% उम्मीद थी और वो इसी 10% उम्मीद को थामे बेंच पे बैठी थी। इसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे भारी शहर से सर को कुचल दिया गया हो। फिर भी इसने कहीं से हिम्मत मुजतमा करके डीजे के घर वालों को फोन कर दिया था। इसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। इसके अब्बू तुर्की आने की कोशिश कर रहे थे और इसके भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस इसकी समझ में यही बात आई थी। बार बार कोई ना कोई उसे फोन करता और वो हर बात के जवाब में फीकी आवाज से इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता, डॉक्टर भाई नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बेंच पर बैठी थी। आंसू लड़ियों की सूरत आंखों से गिर रहे थे। 10% की उम्मीद। इसने गोद में रखे मोबाइल को देखा और कपकपाते हाथों से उठाकर पैगाम लिखने लगी। मैं टाक्सिम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ। डीजे को ब्रेन हैमरेज हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। और जिहान को भेज दिया। इनके दरमियान अगर कोई तल्खी थी भी तो उसे याद नहीं थी। अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा। अजान का वक्त हुआ तो उठी और वजू करके वापस इधर आई। कोट इसने वहीं बेंच पर छोड़ दिया और अब नीली कमीज की आस्तीन गीले बाजू से नीचे कर रही थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल गीले थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कबल की दो लड़कियों की गुफ्तगू से याद आई थी। वो सलाम फेर कर तशद्दुद की हालत में बैठी थी। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था और ये वजू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियां मिलाए इन्हें दबदबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज रो रही थी। आपको पता है डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त। ज़ारा, इरम, इन सबसे अच्छी दोस्त। उसे हमसे मत छीने। इसके माँ बाप वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत आजमाएं। आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए हुए होले होले लरज रही थी। शिफॉन का नीला दुपट्टा सर से फिसल कर गर्दन की पूंछ तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके। मेरे पास बचाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप हैं, आखिरी भी आप हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस लौटा दें। आप डीजे को ठीक कर दें। आप इसके दिल पर गिरता हर आंसू अंदर ही दाग लगा रहा था, जलता सुलगता हुआ दाग। इसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था। अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मांग सकूं और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। मेरी ये एक दुआ मान लें। मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस लौटा दें। मैं हर वो काम करूंगी जो आपको राज़ी करे और राज़ी रखे। मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करूंगी। आप डीजे को ठीक कर दें प्लीज़। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो ज़िंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आज थी। वो कभी इतनी बेबस, इतनी लाचार भी नहीं रही थी जितनी इस वक्त थी। कितने घंटे गुजरे, कितनी घड़ियां बीती, उसे कुछ याद नहीं था। बस अंधेरा छा गया था जब इसने जिहान को तेज तेज कदमों से चलते अपनी तरफ आते देखा। वो खड़ी भी नहीं हुई, बस बेंच पे बैठी गर्दन उठाए उसे देखे गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी है वो? हुआ क्या था? वो फूली सांसों के दरमियान कहते हुए इसके साथ बैठा। वो इतना ही परेशान था जितनी वो। बैरी एनोरिज्म फट गया था जिसके नतीजे में सब
ارکنائڈ ہیمریج۔ اسے خود جو سمجھ میں آیا تھا وہ بتانے لگی، بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچ کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو۔ اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے کرتے دیکھنے لگی۔ اوکے، وہ سر ہلا کر بات ختم کر کے واپس آیا۔ کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو۔ ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ اوہ جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پر سے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پی کر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی۔ میں نے اتنی دعا کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیتی ہے حیا۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جہان، حیا، ٹی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا یکدم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی تھیٹر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں آئی تھی۔ وہ بنا گلک چپ کے جہان کو دیکھے گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پر دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی گیلی دھند۔